Welcome to Arc English, and we will start second year course from this day onwards. As such, we have three parts to learn. The first part is the functional grammar part, and the second part, which I feel very important, is the creative and innovative part, where you can challenge the world. And the third part is the text part, and the text part is meant to read and write well. Understand? And your understanding can be developed through the text part when you interact with your teacher. So first I should start with the grammar, and the easiest one is the passivization. In our school career, we have read that as voice change, where you have active voice and passive voice. So if I am not mistaken, I should say that they are only the structural part. They will not act practically in our writing part. Why? Because they are structural, and we often exactly transform from active voice to passive voice. If I would say you that some of the text tense aspects of passive, like this: I eat rice, rice is eaten by me. I am eating rice, rice is being eaten by me. I have eaten rice, rice has been eaten by me. You see, practically they are wrong. We have never said I have eaten rice. We rather say I have taken my meal. I have taken my food, not rice. But it is as such, it is structural. We are learned. Right. So, the part is that, or the passive voice is that, we never say that rice has been eaten by me. They are the unnecessary things, but they are structural. We must learn them. But passivization, it is the form of a verb, like other forms. आमको पिला बेले कहला बेले जे एक्टिव, पैसिव, फिनाइट, नॉन फिनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब. ये होची पांचटा क्रियार प्रकार भेद. तो आम माइंड रे रही आम जेहेतु यूनिट हिसाब से पढ़ी आम माइंड रे रही प्रत्येक गोटे गोटे टाइप ऑफ गोटे गोटे वर्ब. फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव. बट इनफैक्ट इट इज नॉट दैट. दे आर 5 पार्ट्स ऑफ वन वर्ब. गोटे क्रियार प्रकार भेद है. तेणु आमको ये बुझा पड़ो व्हाई पैसिवाइजेशन इज इंपोर्टेंट. Passivization is important because 80% of the English verbs, mind it, are used in passive. 80%. Say most of the English verbs are used in passive. So, देखो, for an example, the thief was caught, the door was open, I was born in Bhubaneswar, the book is published. You see, these are some of the verbs that are usually made passive. They have no active form. For their intransitivity case, ये जो intransitivity word, ये गोटे तुम पाई नुआ पिले. ये जो intransitive, आमको सार माने कह दियंती एटा हबनी passive. For what? Because of their intransitivity case. केस माने आमे जोटा कौचे ओडिया रे कारक ये सब जिनस है. तेणु ओडिया ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर भितर हेल एंड हेवन डिफरेंस रोच, एंड वी विल हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप. तो मोर कहया कथा पिले वी विल गो टू लर्न द 4 एलिमेंट्स. ये होची हमर कंप्लीटनेस पैसिवाइजेशन. तो मुझे कहली तुम पैसिवाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब. तापर मीनिंग कहले. मीनिंग कौन पे? पैसिवाइजेशन माने इट इज द स्लीपिंग स्टेट, माने क्रियार कौन सी एक्शन नहीं,
राइट क्रियार कहीं एक्शन ना ना क्रियार धर्म पिले द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वर्ब इज टू एग्री इटसेल्फ विथ द सब्जेक्ट से सब सब्जेक्ट सहित एग्री हम जिते ऑब्जेक्ट सहित एग्री करा जाए से साइलेंट रुहे तेणु इट इज द स्लीपिंग स्टेट और साइलेंट मोड रे आम रखीदे था क्रिया को है मुझे तुमको प्रैक्टिकली बताऊँ तो आसला पे जो फॉर्मेशन रे पिले कौन हो ना आमको नॉन फिनाइट पार्ट के पढ़ाएनी आम स्कूल कैरियर रे किंतु आम ये दुईटा को पढ़ा फिनाइट माने कौन पिले फिनाइट हूँ कंप्लीट नॉन फिनाइट कौन पिले नॉन फिनाइट हूँ ए वर्ब दैट एक्सप्रेसेस इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन आम ओडिया जहाँ कहे समापिका असमापिका समापिका माने समाप्त अवस्था जो क्रिया को प्रकाश करा जाई पारे समाप्त को माने जार प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म अच्छी से माने समाप्त समापिका क्रिया से माने हला नॉन फिनाइट कौन पिले दैट एक्सप्रेसेस इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन असमाप्त अवस्था प्रकाश करा जाई पारुथिबा क्रिया एक्जाक्ट ओडिया मु कहूँ असमाप्त अवस्था देखो आई सॉ द मैन कम आउट ऑफ द टेम्पल आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड मु ताकू रास्ता पार करूथिबार देखिले देखो रास्ता पार करूथिबार ये कौन असमाप्त अवस्था प्रकाश करा जाइथिबा क्रिया हला आई सॉ हिम कम आउट ऑफ द टेम्पल आई सॉ हिम कम आउट माने बाहरी आसीबार इट इज ए कंप्लीट माने तार एक्शन सरी जाइए किंतु से अवस्था आम कहे इनकम्प्लीट सेन्स है पिले तो युवा हूँ तुम नॉन फिनाइट भितर मुझे तुमको धारणा दूसरी पिले कारण वी आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड विथ द फिनाइट एंड नॉन फिनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब तो टिके आइडिया दूसरी नॉन फिनाइट पर पढ़ा आमर जो रही ग्रामर पार्ट से भितर नॉन फिनाइट जो जो जिनस इंपोर्टेंट आसो तार मु पूरा पूरी एलाबोरेटिव जीवी कारण नहले वी विल नॉट कम फॉर राइटिंग आमको करेक्ट द एरर 10 मार्क पड़ू हाउ कुड यू नो इफ यू डू नॉट नो द फंक्शनल ग्रामर पार्ट राइट द फंक्शनल ग्रामर पार्ट कहले तुम 5-6टा जिनस विशेष क्रिया आम नौ देख आर्टिकल जोटा आम स्ट्रक्चरल बोली कहूँ आर्टिकल प्रिपोजिशंस है डिटरमिनर्स अंडरस्टैंड तापर तुम रहा तुम स्ट्रक्चरल पार्ट रे पैसिव एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच टेंस एस्पेक्ट मोडाल टेंस पैटर्न जोटा कि आमर पुणी नॉन फिनाइट है एतिकी जिनस जदि तुम धरीपर ताहले तुम 10 मार्क जो टेंस करेक्टिंग द एरर से तुम कर है तुम जो क्रिएटिव राइटिंग रे आम देख 70 मार्क आम निजे लिखा राइट फ्रॉम माने बिगिनिंग फ्रॉम इनफॉरमेशन ट्रांसफर रिपोर्ट राइटिंग नोट मेकिंग समराइजेशन एसे एतक जिनस कवर अप कला बेले यू मस्ट हैव योर ओन माइंड योर ओन थॉट योर ओन आइडिया एंड योर ओन प्रेजेंटेशन दैट इज वाई फंक्शनल पार्ट ऑफ ग्रामर इज वेरी मच इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर आम किसी जानीचे पिले किंतु फंक्शन तार जाना तो इसी तो नॉन फिनाइट हो पिले तो नॉन फिनाइट आम देखिए पे एप्लिकेशन आम जोड़े जिनस रहा पिले एप्लिकेशन माने आम कौटी तार प्रयोगात्मक शैली अप्लाइड ग्रामर आम जोटा कहे आम प्रयोग को आम तो शिखीदे आम प्रयोग केमती करवा तो ये रहा पिले डूज पार्ट आउ डोंट्स पार्ट है डूज एंड डोंट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आम घर मान कहूँ ना यहीटा करूनी कौन करू छाड़ इट इज योर डेसिशन किंतु कौन करूनी से मुझे कहबी तेणु द प्रिंसिपल्स और द डॉक्ट्राइन्स ऑफ एनी इट ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्ट्स अस नॉट टू डू समथिंग ये आमर संस्कार भीतर रही तेणु आम डोंट्स पार्ट को जब आम शिखी जापर जानीदे वेयर इट शुड नॉट बी यूज्ड तेल आम जानीदे डूज छाड़ आम पर ये डोंट्स पार्ट कौन डूज पार्ट कौन तापर आसला पे फंक्शनल जो आम सब जिन शिखीदे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन शिखिले फॉर्मेशन पार्ट शिखिले और तार यूज जानले फॉर्मेशन माने हाउ दिस वर्ब इज क्रिएटेड पैसिवाइजेशन रो क्रिएशन केमती होपर आसला पे डूज केते व्यवहार हुए कौटी या व्यवहार कर आसला फंक्शन जोटा कि मोर आई हैव जस्ट गिवन सम हंड्रेड्स क्वेश्चंस इन माय मटेरियल वी विल डू दैट है तुम घरे कर मत देखेब जोटा न बुझे मुझे कहीदेवी तुमको विथ रिजन
है। तो आम यही जिनस जानले बोले बर्तमान आम आसिया देखा पे जो फिनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब आम केमती प्रस्तुत करिया ताको केमती पैसिवाइज्ड केमती हुए। तो आम जो देखले बोले एथिरे चारिटा जो टेंस एस्पेक्ट रहा बोले एथिरे चारिटा पार्ट हुए ना। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दियो पिले ये जो तीनटा जिनस रहा लास्ट रो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर प्रोग्रेसिव। ओके, फ्यूचर प्रोग्रेसिव यही चारिटो जिनिस पिले हुए ना कौन पैसिवाइज्ड हुए ना। तुम कही दूस पिले प्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म में दूस पिले प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तापरे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट सब सिंक्रोनाइज करछि हला। तापरे तमरो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट। छोट पिला मु तुम कहूनी तुम ऑलरेडी यू हैव ग्रोन अप। ये जो तीनटा जिनस ये जो चार्टा जिनस पिला आम रखिले एगुड़िक सब पैसिव फॉर्म नहीं पारे ना। ऑलरेडी मुझे कहली पिले यू कैनॉट मेक देम पैसिव, दिस टेंस एस्पेक्ट्स कैनॉट बिकम पैसिव फॉर देयर इंट्रांजिटिविटीनेस है। इंट्रांजिटिविटी कौन माने कहली ना ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन? ट्रांजिटिव जान पे ट्रांस इज द रूट वर्ड, ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमाइग्रेट, ट्रांसमिट, ट्रांजिटिव। ट्रांस इज द रूट वर्ड है। तो दैट पासेस ओवर, ट्रांस मीन्स दैट पासेस ओवर। आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड दैट विथ ए ब्राइट एग्जाम्पल। हरी किक्ड द बॉल, राइट। तो देखो पहले ये सब्जेक्ट रहा हरी, ऑब्जेक्ट रहा बॉल, जो मोशनटा किए देला हरी देला। इट पासेस ओवर फ्रॉम द वर्ब टू द डोयर। तेणु ये हूँ तुम ट्रांजिटिव। मैं तुम परोक्ष भाव में कहूँ पिले राइट। जो ट्रांजिटिवटा कौन दैट पासेस ओवर, द फोर्स ऑफ हरी पासेस ओवर टू द बॉल एंड द बॉल रोल्ड ऑन है पिले बस। तेणु ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कौन तुमको कहुई ना ट्रांजिटिव पिले ट्रांजिटिव वर्ब कौन सार ए वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। भाई केवल एमती सिस्टम रे माने कौन फॉर्मूला कहले हेबन, यू मस्ट अंडरस्टैंड मीनिंग देयर बाय ए वर्ब विदाउट ए वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैनॉट हैव कंप्लीटनेस, सी होचे ट्रांजिटिव। इफ द वर्ब टेक्स विदाउट एन ऑब्जेक्ट एंड कैन बी कंप्लीट, सी होचे इंट्रांजिटिव वर्ब। तेणु आम जस्ट सिंपली कहले आम केवल छोट माइंड रे स्कूल कैरियर आमको आगला देखो पे सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। कर्म सह जी आस सकर्मक, द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब दैट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट बट गिव्स कंप्लीट सेंस, से होची इंट्रांजिटिव है। अकर्मक कर्म विहीन जी प्रकाशित होची है। तो ये रहा बेले आमे बर्तमान देखा सेकेंड फॉर्म हूँ पैसिव फॉर्म केमती क्रिएट। मुझे कही ना फॉर्मेशन पार्ट है पैसिव फॉर्म केमती क्रिएटिव हो आम यहीटार भी देखा यहीटार भी देखा किंतु आज केवल यहीटार देखा है। तो नेक्स्ट आस पिले फिनाइट वर्बटा कौन हो। फिनाइट वर्ब मुझे ये जिनस देदेली जे बर्तमान आम देखा गोटे ट्रांजिटिव वर्बटा आम नेबा पिले कीप है। तो सिंपल प्रेजेंट कहली एसपी लिखिदेली है। अच्छा यहाँ रहा तुम एक्टिव, ये रहा तुम पैसिव है पिले। ये पैसिव रे आम कौन कले पिले बी प्लस बी पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पिले बी प्लस बी3 जो फॉर्मेशन होगा ये आमर पैसिव होगा। अच्छा देखो सिंपल प्रेजेंट रे आम कौन नेले कीप
और keeps है बर्तमान आस देखिए ये बी प्रेजेंट कौन पिले इज एम आर है तो लो इज नियो तो V3 कीप रो पास्ट पार्टिसिपल कौन है कीप केप्ट केप्ट इज केप्ट तब आस पिले प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज कीपिंग कौन है पिले बी रो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन पिले प्रेजेंट कंटिन्यूअस रो फॉर्मेशन कौन इज एम आर प्लस वी आई एन जी इज एम आर इज टा आण है वी आई एन जी वी किए वर्ब होची बी बी रे आई एन जी फॉर्मेट कौन है इज बीइंग तापरे V3 केप्ट तुमको घुषी दरकार पड़ा तुम 10 टकर 10 सेट पड़े आनिक किणिकी तुम घुषुल आई इट राइस राइस इज बीइंग इटन माई आई इट राइस राइस इज बीइंग इटन माई बाय मी है जो घुषा विद्या करुले जदि मन न पड़े ताले आज भी पिला जदि आम पचारे हर फ्यूचर परफेक्ट कौन हम कहलु आज भी पिला कहीपर 85-90% पिला 85-90% पिला जदि टेंस पचार दे आर नॉट एबल टू स्पीक व्हाई बिकॉज दे डू नॉट नो द कंस्ट्रक्शन पार्ट फॉर्मेशन पार्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट तेणु कहली ना कम्युनिकेटिव राइटिंग किसी तुम लिखा जाऊ तो किसी लिखा गला आमर 3टा विशेषकर दरकार गोटे हूँ सब्जेक्ट फ्रेज गोटे हूँ ऑब्जेक्ट फ्रेज आ गोटे हूँ वर्ब फ्रेज ये 3टा जिनस आमर जब ज्ञान रही यू कैनॉट फॉर्म ए सेंटेंस है तो देख इज बीइंग केप्ट है देखो आम इज बीइंग आनले बी प्लस V3 कौन वर्ब फ्रेज बोली कह फ्रेज माने कौन पिले वर्ड हूँ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग ए सेंस ए ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग ए सेंस तामाने ABCD कहले ना BQIS कहले वर्ड नहीं तो यू मस्ट इट मस्ट हैव सम सेंस फ्रेज कौन पिले फ्रेज हूँ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स सम मीनिंग है द डॉग इज इन द गार्डन इज ए फ्रेज ये किसी मीनिंग दौर सेंटेंस भितर जे किसी अर्थ प्रदान करे गोटे किसी शब्दर समष्टि ताको आमे फ्रेज करवा व्हाट इज क्लॉज ए क्लॉज is a part of a sentence which is dependent upon its main verb main clause सी हूँ तुम क्लॉज है तो क्लॉज और सेंटेंस भितर डिफरेंस कौन पे जान दैट इज ए वेरी बेसिक डिफरेंस you see the clause is most alike as a sentence it has a subject and predicate part and the subject too and the sentence too but the difference between a clause and sentence is that its verb is not a complete one है तार क्रियाटा कंप्लीट नथियो it doesn't have complete sense है देखो पहले when I saw a tiger I ran away देखो I ran away it's a complete verb complete sentence but when I saw a tiger it's not complete because time adverb होची when I saw a tiger मुझे बाघटी को देखिली हाँ कौन है सेठू तो it predicts incomplete sense you will have to fill it up है तो देखो पहले प्रेजेंट परफेक्ट है कौन पहले हैज आर फॉर्मेशन कौन हैज हैव प्लस V3 है ये बर्तमान कौन आसला बी रो प्रेजेंट परफेक्ट कौन हो पहले हैज हैव प्लस V3 है जान बी रो V3 कौन है बी इज एम आर प्रेजेंट पास्ट वाज वेयर पास्ट पार्टिसिपल बीन हेले कौन है हैज बीन देखो पहले आमको एत क्लीयरली आमे केबे ना शिखिया को प्रयास करथिले ना आमको किए कही तो स्कूल मानक गोटे बर्ड्स आई व्यू दि जाए है आम घरे से प्रयास करिया दरकार किंतु जेहेतु आई नो दैट स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी मच अलर्ट टू हैव इनफॉरमेशन आई एम बाउंड टू गिव हियर द डिटेल इनफॉरमेशन टू यू तो हैज बीन तापर कौन है बोले
केप्ट देख पे मुझे अलग रखुची या माने नुह जो मैंने अलग वार्ड मु शिक्षा अलग रखुची है राइट बर्तमान आसीगला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छी कि नहीं बर्तमान सिंपल पास्ट आसवा सिंपल पास्ट कौन है पिले केप्ट ये बर्तमान कौन है बी रा पास्ट फॉर्म वाज बी रा पास्ट फॉर्म वाज वेयर एंड केप्ट ओके बस पास्ट कंटिन्यूअस कौन है पिले पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्मेशन बी प्लस भी आई एन जी कौन है पास्ट कौन बी रो वाज वेयर एवं आई एन जी ओके कीपिंग कौन है बर्तमान बी रो पास्ट कंटिन्यूअस कौन पिले वाज बीइंग केप्ट ओके वाज बीइंग केप्ट तापर आस पास्ट परफेक्ट फॉर्मेशन कौन बोले हैड प्लस V3 हैड प्लस V3 केप्ट ये कौन रहा हैड बीन पास्ट परफेक्ट है हैड बीन जमती कि देख पास्ट परफेक्ट ये भी सेमती हैड बीन तापर रहा आ गोटे केप्ट क्रिया बर्तमान आसला बी रो पास्ट परफेक्ट होची हैड बीन आउ कीप रो पास्ट परफेक्ट केप्ट हैड बीन केप्ट देखो जोड़ी पास्ट पार्टिसिपल आसुछ हैला बहुत समय आम देखो इफ द डॉक्टर हैड कम इन टाइम फर्स्ट ईयर पढ़ी मन थो है इफ द ट्रेन इफ आई हैड रीच टू द स्टेशन जस्ट ए बिट अर्लियर आई कुड हैव गट इन टू द ट्रेन है if the doctor had come in time the patient would have been survived है आम करते फर्स्ट ईयर